वेलकम टू द केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। Before we learn to start speaking correct English, it is very important to have complete clarity about the basic elements of grammar because it is a fallacy or wrong information that we do not need to know grammar if we have to learn to speak proper English. Any language, if we have to start speaking it, we must have some clarity about the basic elements of grammar of that language. So, इससे पहले कि हम सही इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामर के बुनियादी तत्वों के बारे में हमें पूरी स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गलत फहमी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखना है तो उसके ग्रामर के बारे में हमें जरूरत नहीं है, मतलब उसके बारे में जानने की नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। So in this course we will first learn the usage of basic grammar before we start speaking correct English. So only the basic grammar elements we will learn so that we are aware how to use them while speaking correct English. तो हम सही इंग्लिश बोलना शुरू करने से पहले इस कोर्स में बुनियादी व्याकरण या ग्रामर का उपयोग सीखेंगे, जिससे कि हमें पता हो कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, किसकी जरूरत कहाँ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेलकम वंस अगेन। We had very briefly discussed noun, pronoun, adjective, verb, modals, tenses, subject verb agreement, adverb, articles, preposition, and conjunctions in the previous videos. And now we will discuss interjections. An interject word or phrase that expresses a sudden emotion or feeling. It's a part of speech that is not grammatically connected to the rest of the sentence and is often set apart by an exclamation mark or comma, mostly by an exclamation mark. Interjections are used to convey a range of emotions like surprise, joy, pain, or excitement. Some common examples include wow, ouch, hey, oh no, alas, etc. Here are some detailed examples. Expressing surprise or wonder. Wow, what an amazing show. Expressing pain. Ouch, I hurt my foot. Expressing joy or excitement. Hooray, I won the match. Expressing disappointment or sadness. Oh no, I lost my bag. Expressing greetings. Hello, how are you? Expressing disgust. Yuck, this smell is disgusting. विस्मयादिबोधक एक शब्द या वाक्यांश है जो किसी अचानक उत्पन्न हुई भावना या अनुभूति को व्यक्त करता है। यह वाक्य का एक ऐसा भाग है जो व्याकरणिक रूप से वाक्य के बाकी हिस्सों से जुड़ा नहीं होता है और अक्सर विस्मयादिबोधक चिन्ह या अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है, ज्यादातर विस्मयादिबोधक चिन्ह से यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क से। विस्मयादिबोधक का प्रयोग आश्चर्य, खुशी, दर्द या उत्साह जैसी कई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं वाह, आउच, अरे, अरे नहीं, काश इत्यादि। यहाँ कुछ विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं। आश्चर्य व्यक्त करना, वाह, यह एक अद्भुत शो था। दर्द व्यक्त करना, आउच, मेरे पैर में चोट लग गई। खुशी या उत्साह व्यक्त करना, हुर्रे, मैं मैच जीत गया। निराशा या दुख व्यक्त करना, अरे नहीं, मेरा बैग खो गया। घृणा व्यक्त करना, छी, यह गंध घिनौनी है। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि यह बहुत ही प्रिलिमिनरी या बेसिक नॉलेज है जितने भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर हैं उनके बारे में। अगर आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, नुआंसेस को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी आखिरी स्लाइड को ध्यान से सुनिए और मुझसे संपर्क करिए। If you want to have a detailed explanation and knowledge of all the elements of grammar that I have just touched upon preliminary in these videos, you may contact me and please visit my website and I will
be in touch with you. So today we talked about one element of English grammar. You may contact me, but remember, those classes which I take to teach you detailed grammar, I take lessons in detailed grammar, they will be paid classes. तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश व्याकरण का एक एलिमेंट के बारे में बात की, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल ग्रामर क्लासेस पेड क्लासेस होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।